Good evening and welcome to this special governance entrepreneurship class at Ashoka University with Delhi's beloved Education Minister and the Deputy Chief Minister, Mr. Manish Sisodia. This session is being broadcast live on Facebook and will also be available for viewing later on YouTube. Mr. Sisodia needs no introduction, being a prominent household name, not just in Delhi, but the entire country as an education reformist. Today, thanks to him, Delhi's education budget is 25% of the entire state budget, which is quite incredible, I must say. And the impact of that can be seen both inside and outside the classrooms. In 2017, he was awarded as the finest education minister, and in 2019, as a champion of change. He recently released a candid account of his experiences as an education minister in his book, called Shiksha, My Experiments as an Education Minister. Mr. Sisodia also holds multiple other portfolios in Delhi, including finance and planning, land and building, vigilance, art and culture, and others. Welcome, sir. It's an honor to have you with us today. Thank you. I also wanted to take this opportunity to introduce you to my co-faculty in the course, Dr. Priyank Narayan, who is also the director of Ashoka's Center for Entrepreneurship. Namaskar, sir. Thank you very much for joining us today. We're delighted that you're amongst us. It's a pleasure to be here. Welcome to Ashoka University. Thank you. Thank you, sir. We have a full house in the class. For the first time, I have seen 0 absentees, which is great, I think. You have a great pull. I wanted to start off, sir. We all have some idea about your journey from being a journalist to an activist to a political leader today. But we'd love to know what you're trying to teach in this class on governance entrepreneurship is, how do you get people to back your ideas? How do you get people to support you? And we'd love to hear that in all that you've done in these many, many years, how did you get people to come behind you, to come in your endeavors? Yeah, as you said, thank you very much for a long introduction. A short introduction. Generally, I give about all these things, that this portfolio, that journey, and this. I'm a dreamer. सपने देखते हैं और उन सपनों को सच करने के लिए कुछ कुछ करते हैं. सही दिशा में हो जाता है तो अच्छा लगता है. अब किसी एजेंडा को लोगों तक ले जाना, किसी एजेंडा को लोगों का एजेंडा बनाना या लोगों के बीच से एजेंडा निकालना एक बड़ा इम्पोर्टेंट फिनोमेना है. जब हम if I talk about my journey, जब जर्नलिज्म में थे उस वक्त तक और उसके बाद भी काफी लंबे समय तक एक सोच ये बनी रही कि पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन बहुत जरूरी है देश में. देश में IAS ऑफिसर्स हैं जो देश को चलाते हैं, इंजीनियर्स हैं जो बहुत सारी चीजों को एग्जीक्यूट, मतलब प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, जो भी आप बोलिए. देन पॉलिटिशियंस हैं, as per the constitution, as per the arrangement of the system, they bring the public voice, public sentiment to the table. IAS officers, administrators bring the backbone, and the professionals like doctor, engineer, and all professionals bring the professional expertise to the table. That's how governance works. इसमें एक चीज की कमी थी कि पॉलिसी लेवल के इंटरवेंशंस, उसका एनालिसिस, उस पर रिसर्च करना, उसको नए सिरे से देखना, उसका स्कोप नहीं था. ये समय समय पे लोगों ने किया है, बट बहुत अच्छे, मतलब बहुत बड़े लेवल पे नहीं हुआ. तो हमेशा ये लगता था पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन बहुत जरूरी है. इसीलिए जब IAC मूवमेंट से पहले एक कानून बना, राइट टू इंफॉर्मेशन कानून देश में, मैं उसका हिस्सा बना. और राइट टू इंफॉर्मेशन कानून में उसके जो पॉलिसी में, मतलब उस समय के जो पॉलिसी मेकर्स थे सरकारों में, उन्होंने स्पेस दिया कि हम उनको बता सकें क्या करना है, कानून ड्राफ्ट कर सकें, दुनिया में क्या अनुभव है उनको ला सकें टेबल पे. थोड़ा प्रेशर ग्रुप भी बना, जन मूवमेंट भी बना धीरे धीरे, पर सरकारों ने उसको सुना और किया. वहां से एक उम्मीद बनी कि देश में हमारे जैसे लोगों को जो पॉलिटिक्स में नहीं है, जो ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, अपना अपना काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी समझ रख रहे हैं, थोड़ा आइडिया रख रहे हैं देश को कि इस लेवल पर कुछ इंटरवीन करने की जरूरत है, तो इकट्ठा होके एक प्रेशर ग्रुप, पॉलिसी प्रेशर ग्रुप बन के सरकार को कन्विंस करना, जनता को इसके बीच से मुद्दे निकालना, इसका स्पेस है. राइट टू इंफॉर्मेशन कानून ने एक रास्ता दिखाया था और हमारा एक फर्म बिलीफ बन गया कि हमारी यही भूमिका है. बट समहाउ, एज यू नो थ्रू द जर्नी,
जब राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून तो बन गया, लेकिन जब हमने कहा भाई ये करप्शन, राइट टू इन्फॉर्मेशन का यूज करके करप्शन जानना तक तो ठीक है, पर जो आदमी करप्शन कर रहा है उसको सजा भी तो मिलनी चाहिए, करप्शन रुकना भी तो चाहिए। उसके लिए जन लोकपाल लाओ, तो उन्होंने फिर उनको लगा यार ये कैसे बंद हो सकता है। बड़ा मूवमेंट बना, मूवमेंट के बाद में उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया कि आप लोग कौन है, हु आर यू, एरोगेंस ऑफ पावर अटर्ड, गटर स्नाइपर्स हैं आप लोग, तो एरोगेंस ऑफ पावर अटर्ड कि अगर तुमको यही है तो ऐसे थोड़ी होता है, कानून बनाना है तो चुन के आओ जाके, तब बात करना, अगर गवर्नेंस को ठीक करना है तो चुन के आओ, ठीक है तुम्हारी बात एक बार सुन ली, बार बार थोड़ी सुनेंगे। तो वहां आके फिर पॉलिटिक्स में आना हुआ। पर पॉलिटिक्स में मुद्दों को लेके हम अकेले नहीं आए, बहुत लोग समय समय पे आए हैं। जब तक जनता, मतलब जो आप सोच रहे हैं क्या जनता भी वो सोच रही है? मैं सोच रहा हूं कि मेरे घर के सामने बहुत ट्रैफिक हो गया है और उसको वन वे हो जाना चाहिए, दैट्स माय आइडिया। बट क्या मेरे मोहल्ले में रहने वाले लोग उसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं? उससे होने वाली, हाइपोथेटिक एग्जांपल है, बट क्या उससे होने वाली असुविधा को सहज रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वन वे, मुझे लगता है कि मैंने दुनिया देख के आया हूं, मैंने बड़ी बड़ी कॉलोनियां देखी हैं देश की, वहां पे जहां भी ट्रैफिक की समस्या होती है वहां वन वे कर देते हैं, एक अच्छा सॉल्यूशन है। पर क्या वो मेरे मोहल्ले में लागू होगा? क्या वो मेरे मोहल्ले के लोगों को स्वीकार है? क्या उससे पहले क्या मेरे मोहल्ले के लोग उसकी जरूरत को समझते हैं? अगर जरूरत को नहीं समझ रहे हैं या उनको उसकी जरूरत का आभास नहीं है, आइडिया नहीं है, तो मेरा काम पहले पॉलिसी बनवाना नहीं है। एज ए लीडर मेरा काम पहले उसको जनता में उतारना है। मैं इस बात को कंक्लूड करते हुए बहुत क्विक एग्जांपल आपको दूंगा। मैं जब जर्नलिज्म में था तो मेरे एक दोस्त थे, यहाँ इंजीनियर थे, बहुत ईमानदार थे, सेंट्रल CPWD में, मन नहीं लगा उनका, मध्य प्रदेश से आते थे, तो वो रिटायरमेंट लेके चले गए, बोले यार मुझे नौकरी छोड़ के चले गए, मैं अपने गांव में रहूंगा। मध्य प्रदेश में जाके कुछ खेती बाड़ी करने लगे, गांव में माहौल बना, पढ़ा लिखा आदमी गांव में वापस लौट के आया था, गांव के लोगों ने आगे बिठाया, गांव में सरपंच बन गए। तो उनकी और मेरी बहुत बातचीत होती रहती थी, तो कुछ कुछ आइडियाज उन्होंने इंप्लीमेंट करने शुरू किए, और 5 साल बाद मुझसे कहा कि यार मैंने दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा सरपंच का। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले यार मैं सोच रहा था गांव को साफ रखना है, सफाई करनी है, गांव में कोई सफाई रखने को तैयार ही नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, विनय नाम था उनका, विनय भाई आप ये बताइए कि गांव साफ हो ये आपका ही सपना है या गांव में कुछ और लोगों का भी सपना है? तो बोले क्यों, क्या हुआ? मैं तो यार 5 साल से कर रहा हूं, मैं उधर सरकारी सिस्टम साथ देने को तैयार नहीं है, उधर गांव वाले साथ देने को तैयार नहीं है, गांव साफ कैसे होगा? अगर मेरे से प्रधान रहने के बाद गांव साफ नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ? पर जब मैंने उनसे पूछा कि किसी और का भी सपना है गांव में कि गांव साफ रहे, तो वो अटक गए, बोले हाँ यहाँ मेरे से गलती हो गई। तो हमें सपना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि पहले गांव में साफ होने, लोगों को ये फोर्स करने से पहले कि अपने घर के आसपास सफाई रखो, हमें हमारा गांव साफ दिखे, इसका सपना तो जगाना पड़ेगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में यही हुआ कि हमारा देश करप्शन फ्री दिखे, वो एक लंबी जर्नी थी, हमारे उसमें थोड़ी सी भूमिका थी। लोगों में धीरे धीरे सपना लग रहा था यार हमारा देश करप्शन फ्री दिखे, हमारे देश में करप्शन कम हो, नीचे आना चाहिए, कुछ सुधार होना चाहिए। वो सपना कैपिटलाइज हुआ, एक मूवमेंट बन गया। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि जो बाकी जो लोग हैं जिनके साथ हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम ये अपने सपने कैसे दिखाएं और उनको हम कैसे अपने साथ वो सपने दिखा के जोड़ें। लेकिन सर एक जो चीज सामने आई है वो ये है कि जिस प्रकार का ग्राउंडस्वेल, जिस प्रकार का सपोर्ट इंडिया अगेंस्ट करप्शन कैंपेन में आया था, वो उसके बाद किसी और कैंपेन में या किसी और मुद्दे पे उस लेवल का हमने नहीं देखा है अब तक सो फार। स्पेशली अगर हम बात करें जैसे कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है उससे रिलेटेड, अब ये बहुत बड़ा पब्लिक का मुद्दा है, ये दिखता है, लेकिन उसके बाद भी जो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है या जिस प्रकार का ग्राउंडस्वेल जो होता है जैसा IAC में था, वो हमें नहीं दिख रहा है। तो क्या कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन कैंपेन से आते हैं या आपके एक्सपीरियंस में आते हैं जिसको कि यूज करके हम इस प्रकार का एक दोबारा से एक पब्लिक पार्टिसिपेशन, एक बड़ा कैंपेन हम बना सके जहां पब्लिक इन्वॉल्व है इस पोल्यूशन के मुद्दे? पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पब्लिक की अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट सेइंग इंफॉर्मेशन बहुत बार होती है, पर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है तो फिर पब्लिक का इंटरेस्ट पैदा नहीं होता है उसमें।
ये बहुत जरूरी। जैसे मैंने अभी ये मध्य प्रदेश वाला एग्जांपल दिया आपको, मध्य प्रदेश वाले एग्जांपल में भी जैसे आपने पॉल्यूशन की बात की, साफ सफाई भी उसी तरह का एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और पॉल्यूशन उसका एक मतलब साफ सफाई नहीं रहना भी पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है देश में। क्या लोगों को ये समझ, मतलब लोगों के बीच की ये समझ बनाना कि भाई मेरे घर के आसपास अगर साफ सफाई रहेगी तो मेरे घर की बीमारियां कम होंगी, मेरी अपनी जिंदगी में थोड़ा मैं एस्थेटिक्स, थोड़ा ऑप्टिकल व्यू मेरे घर का आसपास का ठीक होगा, उससे मुझे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जो भी गंद फैल रहा है, मेरे घर से पानी निकलता जा रहा है सीवर का, या जो भी लिटरिंग अराउंड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक उसकी बाइंग नहीं होगी पब्लिक मूवमेंट खड़ा नहीं होता। मतलब पब्लिक मूवमेंट खड़ा होना मुश्किल है। जैसे पॉल्यूशन भी उसी तरह की चीज है। सबको पता है पॉल्यूशन से नाक में धुआं घुसता है, पॉल्यूशन से हमारे फेफड़े खराब होते हैं, बट जो आदमी ये समझता है वही कार से इंडिया गेट पे आता है, 10 लाख 20 लाख की कार में आता है, और उसके बाद वहां से आइसक्रीम खरीदता है इंडिया गेट पे आके, और वहीं उसका रैपर फेंक के जाता है। तो बाइंग नहीं है, आइडिया है उसको, इंफॉर्मेशन है, पर उसकी बाइंग नहीं है कि मेरे द्वारा ये फेंका गया आइसक्रीम का रैपर भी कहीं ना कहीं गंदगी, और गंदगी में सब्सिक्वेंटली पॉल्यूशन में ट्रांसलेट हो रहा है, और वो मेरे ही लंग्स को खराब करेगा, मेरे जैसे किसी और के उसमें। क्योंकि वो क्या होगा, वो उस रैपर को कोई उठे, सुबह झाड़ू वाला आएगा उसको उठाएगा, कहीं आग लगाएगा। ये तो पब्लिक बाइंग बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ अपने पैशन पे आके कुछ करने की कोशिश करेंगे तो इट्स ए मैटर ऑफ चांस, सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं। बट किसी आइडिया की पब्लिक बाइंग करेंगे तो सफलता की चांसेस ज्यादा है। इसमें गांधी जी का बहुत, मतलब गांधी जी का तो जीवन पूरी पब्लिक बाइंग से भरा हुआ है। हर प्रयास, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका का उनका देख लीजिए, नटाल में जो उन्होंने किया, या इंडिया में जब नील की खेती वाला उनका आंदोलन था इधर बिहार में चंपारण में, उनको भी पता था कि नील से बहुत नुकसान हो रहा है। जो 4-6 वकील वहां उस लड़ाई को लड़ रहे थे, उनको भी पता था कि नील की खेती से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, पूरे एरिया की जमीन को बहुत नुकसान हो रहा है। पर गांधी जी ने बहुत कैटेगरिकली उन लोगों को कहा कि भाई मैं खाली वकील बन के नहीं आऊंगा, मैं आपके बीच आऊंगा तो पहले आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने उनको टारगेट दिए, जो वकील बहुत एक्सपर्ट थे उस समय के, अपने अपने वो पिटीशन बनाना जानते थे, उनको पता था नील की खेती से नुकसान हो रहा है, वो अदालत में लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों की अदालत में, और पिट रहे थे, अरेस्ट हो रहे थे उन चीजों पे। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मैं आपके गांव में आके रहूंगा, मुझे आप 40,000 लोगों के सिग्नेचर लाके दोगे, जो किसान नील की खेती से दुखी हैं, जो डरे हुए हैं, जिनको लग रहा है कि नील की खेती बंद होनी चाहिए, अंग्रेज सरकार को नील की खेती हमारे ऊपर थोपनी नहीं चाहिए, मुझे उन किसानों के सिग्नेचर चाहिए। अगर वो करवा के लाओगे तो मैं आपके मुकदमे में साथ हूं, नहीं तो मैं साथ नहीं। मैं बहुत लेमैन अंदाज में कह रहा हूँ, फैक्ट्स मतलब सारे फैक्ट्स को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। पब्लिक बाइंग, उस 40,000 लोगों के सिग्नेचर की जिद ने गांधी जी के पब्लिक बाइंग कर दी। पब्लिक बाइंग खड़ी हो गई तो अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा। एक छोटा सा प्रयोग था, गांधी जी का पहला प्रयोग था इस देश की धरती पर लोगों को झुकना पड़ा, उस वक्त की सरकारों को भी झुकना पड़ा। जी, great sir. So I remember when I had come to request you for this session, you said that कि मैं students से ज़्यादा interact करना चाहूँगा, so yes. Which I've seen you know enjoy quite a lot. So we open this to our students to carry us forward. If anybody has any questions, please use the raise hand button in Zoom, and we can then take it on. Okay. We have a question from Trisha. Trisha, go ahead. Unmute yourself and ask the question. Good evening, sir. Firstly, thank you so much for taking out the time to come here and speak to us today. मेरा क्वेश्चन आपके जो NGO के साथ एंगेजमेंट हुआ है उसके बारे में है। तो जो परिवर्तन और कबीर से जो आपने काम किया है विद हेल्पिंग people reach the government and overcoming the hurdles of bribery or bureaucracy, हम ऐसा सिमिलर काम कैसे कर सकते हैं? As the youth, how can we take the kind of work you've done forward and apply it in a similar way to get similar change? थैंक यू त्रिशा। एक्चुअली सोशल मीडिया और आज के ज़माने में तो इसके बहुत सारे आंसर्स हैं, और यही एंटरप्रेन्योरशिप है कि
well-informed mind who can do some analysis, who understands some issue, can actually raise some voice. आपने, मुझे नहीं पता आप अभी ये बिहार का इलेक्शन फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं. एक लड़की है जो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, राठौर, पूर्णिमा राठौर शायद नाम है उसका. उसने सिर्फ और सिर्फ बिहार की पीड़ा को समझ के, वो गाना गाती है, लोक गायिका है, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है. उसने गाना के आवाज में जनता के बीच में इतना जोश भर दिया है इलेक्शन को लेके कि नहीं ये हालत है, इस पे सवाल पूछो, इस पे, सिंगल है, कुछ नहीं है. और वो इतनी पॉपुलर है, टीवी चैनल्स उसको उठा रहे हैं, बिहार में पॉलिटिकल पार्टियां उसके उठाए सवालों पे जवाब देने पे मजबूर हैं. सिंगल हैंडेड लड़की है. तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, बट दैट इज, आई एम नॉट सेइंग कि इलेक्शन के समय पे आप ये सब करो, सबको ये करना चाहिए. गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं आज की तारीख में. जैसे मतलब प्रथम एक संस्था है, आपने उसका नाम सुना होगा. प्रथम संस्था एजुकेशन पे काम करती है और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन एनी स्टेट, आज आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पे, या कुछ राज्यों में बीजेपी कांग्रेस की सरकारें हैं, इनसे पहले और भी सरकारें इधर उधर, मतलब कोई किस राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट में. प्रथम बहुत सारे वर्षों से यूथ को इकट्ठा करके एजुकेशन के स्टेटस पर रिपोर्ट बनाती है, रिसर्च करती है और रिपोर्ट बनाती है. और देश की सारी सरकारें प्रथम की रिपोर्ट को यूज करके अपनी पॉलिसी बनाती हैं, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो. लेकिन उनको जब ये समझना होता है हमारे गांव देहात में एजुकेशन की क्या स्थिति है. अभी कोविड के वक्त हमने टेक्स्ट बुक दी, उसका क्या असर पड़ रहा है. टेक्स्ट बुक, IT सॉल्यूशंस जिन बच्चों के पास में नहीं है उनकी जिंदगी कैसे बीत रही है. हर चीज पर समझ बनाने के लिए प्रथम की रिपोर्ट रेफर करती हैं सरकारें. सो दैट्स अ ग्रुप, individuals group who are professionals and who are working into education sector individually. They are not government, but, और वो उनको किसी गवर्नमेंट ने करने के लिए भी नहीं कहा, वो अपने आप करते हैं. और गवर्नमेंट बाई, क्योंकि उनकी क्वालिटी इतनी शानदार होती है रिसर्च की. ऐसे पॉलिसी लेवल के बहुत सारे इंटरवेंशंस बहुत जगह जरूरत है. रिसर्च ग्रुप, मार्केट से लेके आज की तारीख में तो स्किल है. हेल्थ सेक्टर में अभी कोविड, पोस्ट कोविड इरा में इतने सारे हेल्थ सेक्टर के इनोवेशंस की जरूरत है. अक्षय पात्रा एक अलग उदाहरण है, फूड सिक्योरिटी पे काम कर रहा है. ये मजदूर किसान शक्ति संगठन है जो अरुणा राजी और निखिल डे वगैरह साथ में मिलकर काम करते हैं. गांव देहात में जाके बहुत पढ़े लिखे लड़के लड़कियां उनके साथ में जुड़ रहे हैं. सो फॉर्मिंग एन NGO और बीइंग पार्ट ऑफ सम NGO इज वन थिंग, बट being part of research and analytics group, using your understanding and knowledge and skill to add value to this. हमने भी सरकार में, दिल्ली सरकार में डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत सारी फेलोशिप शुरू की हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं. नीति आयोग इज फुल ऑफ फेलोज दिस डेज. तो यूथ को IAS बने बिना या पॉलिसी लेवल पे जाए बिना बहुत उसकी जरूरत पड़ रही है. मतलब बहुत एवेन्यूज मिल रहे हैं. बट हैविंग सेड दिस, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने NGO सेक्टर में काम किया, मैंने आंदोलन में काम किया, मैं जर्नलिस्ट रहा. बट जो चेंज हम करना चाहते हैं उसके लिए वी शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स. When I say joining politics does not always mean कि just be a part of any, be a member of any party and just contest election. जरूरत पड़े तो वो भी इलेक्शन भी लड़िए, बट पॉलिटिकल पार्टीज में भी इलेक्शन लड़ने के अलावा इतने सारे काम हैं. जैसे हमारी पार्टी में ही बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ गवर्नमेंट में भी काम कर रहे हैं और पार्टी लेवल पे भी काम कर रहे हैं. एजुकेशन, इकोनॉमी पे रिसर्च से लेके इंडस्ट्री, फ्यूचर जॉब्स, इन सब पर रिसर्च करने का, उसको एनालिसिस करने का बहुत काम कर रहे हैं. वो सारी इंटरवेंशंस कहीं ना कहीं जो भी रूलिंग पार्टी है, अलग अलग पार्टियों में अलग अलग तरीके की रिसर्च कर रहे होंगे लोग, तो वहां काम आती हैं. Right, sir. I think the next question was from Shekhar Chatterjee. Shekhar, go ahead. Am I audible? Yes. Yes. Right. So thank you so much for honoring us with your presence today. Sir, can you share some examples of governance entrepreneurship from within the Delhi government? बहुत सारे हैं. मैं मोहल्ला क्लिनिक अपने आप में एक एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल है.
हमारे सत्येंद्र जैन जी जो मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर, जब 2015 में ज्वाइन किया था, तो ये प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है देश में। तो ही विजिटेड वन ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन दिल्ली। तो वहाँ एक आदमी जो सबसे पहले छोटा सा 3-4 कमरों का सेटअप होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, कई बार 2 कमरों का होता है गांव देहात में, और यहाँ भी। तो वो हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को सरप्राइज इंस्पेक्शन पे पहुंचे, तो वहाँ एक आदमी बाहर बैठा हुआ था। उन्होंने पूछा, भाई क्या करते हो? सरकारी कर्मचारी, 50, 60, 80 हजार रुपए की तनख्वाह वाला, मतलब 60-70 हजार तो आराम से होंगे, कि जी मैं जो भी आदमी यहाँ आता है उसका रजिस्टर में नाम लिखता हूँ। उसके बाद वो अंदर गए, अंदर फिर एक और आदमी बैठा है, आप क्या करते हो? जी मैं भी रजिस्ट्रेशन करता हूँ। फिर वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास भी एक रजिस्टर रखा हुआ है। फिर वो कंपाउंडर के पास गए जो मतलब असिस्ट करता है, दवाइयाँ नहीं थी, उसके पास भी एक रजिस्टर था। तो एक छोटे से सेटअप में डॉक्टर है या नहीं है, कंपाउंडर है, दवाइयाँ हैं कि नहीं है, ये सब इमैटेरियल है। 4 रजिस्टर रखे हुए हैं और उस पर 4 सरकारी कर्मचारी वहां पे बैठ के उसको भरने का जरूर काम कर रहे हैं। ही सेड कि यार ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है, ये तो कायदे में एक हमारे मोहल्ले में बैठने वाला एक MBBS जो जनरल फिजिशियन है, ये उसका कॉन्सेप्ट है। ये कोई एक्सपर्ट केयर तो होती नहीं है, यहाँ सामान्य ट्रीटमेंट होता है बुखार के लिए, खांसी के लिए, या एक जनरल फिजिशियन है। तो उन्होंने कहा जो हमारे आसपास की क्लिनिक होती हैं, हमारे मोहल्ले में जो क्लिनिक होती हैं, वहां एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर अपनी प्राइवेट क्लिनिक चलाता है और वो खुद भी सर्वाइव करता है उसके लिए फीस से, और अपने कंपाउंडर को भी सर्वाइव कराता है। और ऑफ कोर्स मतलब ऐसे बहुत सारे सफल डॉक्टर्स हैं हमारे आसपास जो बहुत बढ़िया से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो व्हाई डोंट एडॉप्ट दैट मॉडल? उस पूरे मॉडल को हमने बहुत सारे फिर डॉक्टर्स से बात करके स्टडी किया, थोड़ा रिसर्च भी कराई। फाइनली वी अडॉप्टेड दैट मॉडल एंड कॉल्ड इट मोहल्ला क्लिनिक, कि बस एक डॉक्टर होगा, एक कंपाउंडर होगा, और उसी मॉडल पे चलेगा, और उसको ऑनलाइन कर दीजिए। तो दिस वाज वन बिग एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। डोर स्टेप डिलीवरी वाज अनदर, कि सरकार के दफ्तरों में जाके काम कराना, दलाल से काम कराने के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना, ये सब कॉमन फीचर है गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड वर्क में। लेकिन हमने अभी तक करीब 125 सर्विसेज को, गाड़ी की सर्विस, गाड़ी के कागज बनवाने से, प्रॉपर्टी के कागज बनवाने से लेके बहुत सारी जात, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, ब्ला ब्ला ब्ला, 125 के करीब सर्विसेज को लेके हमने कहा भाई सरकार के पास आने की जरूरत नहीं है, आप बस फोन कर दो, आप बोलो मैं रात को 10 बजे घर पहुंचूंगा, सरकार का एग्जीक्यूटिव आपसे अपॉइंटमेंट लेके रात को घर पे आएगा, आपके पेपर स्कैन करेगा, ऑनलाइन अपलोड करेगा, और उसके बाद गवर्नमेंट में प्रोसेस होगी, वही आदमी घर आके बाद में आपको सर्टिफिकेट देके जाएगा। देयर इज अ फीस फॉर दैट, I mean, token fees for that. So ये सारे एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप के ही हैं। टैक्सेशन में कई बार नए सिरे से सोचने की जरूरत पड़ती है। आई एम जस्ट गिविंग यू फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। मैं जब 2015 में आया तो मुझे बहुत लोगों ने बहुत फॉर्मूले समझाए कि साहब अगर आपको पैसा खर्च करना है तो इसमें टैक्स बढ़ा देते हैं, इसमें टैक्स बढ़ा देते हैं। मेरे पास व्यापारी आए, बोले साहब हमारे लिए बड़ी समस्या है, आप जब वैट का रिजीम था, हमारे लिए बड़ी समस्या है, आप लोग 12.5% टैक्स रखते हो, और छोटी छोटी चीजों पे हम लोगों को कहते हैं कि भाई 1000 रुपए का सामान है, अब 120 रुपए टैक्स दे जाओ। लोग अवॉइड करना चाहते हैं। इसको आप किसी तरह से 5% कर दो तो हम लोगों को कह सकते हैं भाई 50 रुपए टैक्स दे जाओ, पक्का बिल लेके जाओ। और उन्होंने कहा कि हम ये गारंटी दे रहे हैं कि आपका टैक्स कलेक्शन कम नहीं होगा। जनरल प्रिंसिपल कहीं पढ़ा था, लोअर द टैक्स रेट्स मोर द कंप्लायंस। मैंने कहा चलो को अप्लाई करके देखते हैं, आज मौका मिला है गवर्नमेंट में आके। तो हमने सबसे पहले दिल्ली में टिम्बर पर 12.5% से घटा के 5% टैक्स कम किया। बहुत लोगों ने डराया, नॉर्मली ऑफिसर्स भी डर रहे थे, सर टैक्स इतना कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने एक आइटम पे रिस्क लेके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क लिया, 15-16 का टैक्स कलेक्शन गवाह है इस बात का, 2015 के बजट में मैंने किया था कि 7.5% टैक्स डाउन किया, 12.5 से लेके 5% किया। उसके बावजूद जो हमारा टैक्स कलेक्शन था वो 1% ज्यादा ही हुआ, यानी कि कंप्लायंस बढ़ता चला गया। अगले साल हमने 30-35 आइटम्स पर टैक्स घटा के, तब वैट होता था और वैट स्टेट गवर्नमेंट घटा देती थी, तो 30-35 आइटम्स का टैक्स घटा के 12.5 से 5% कर दिया। और हमने कहा भाई टैक्स देना है। इस पॉलिसी की वजह से और बहुत सारे इंटरवेंशंस हुए। दिल्ली सरकार का बजट जो 2014-15 में
26,000 करोड़ से 30,000 करोड़ हुआ 15-16 में, मतलब एक साल में हमसे पहले 26 से 30,000 करोड़ रुपए हुआ। 5 साल के अंदर अंदर वो 30,000 से 60,000 करोड़ रुपए हो गया। सो ये टैक्स करेक्शन में भी इंटरवेंशन इस तरह, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसमें। सर मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन था इसी सवाल पे कि जब कोई नया आइडिया आता है सरकार के सामने, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म है या कोई ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करा हुआ है कि वो उस आइडिया को एक एग्जीक्यूशन तक पहुंचाने के लिए the entrepreneurial environment that we talk about or the mindset we talk about, तो उसमें कुछ स्पेशल कदम लिए गए थे कि कोई नया आइडिया है तो हम उसको कलेक्ट करेंगे, उस पर डिबेट करेंगे, या ये कैसे इसकी वेटिंग होती है, कैसे इसको हम प्रोसेस? गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग बहुत आइडियाज लेकर आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, फॉर्मल चैनल्स पे भी देते हैं। हमने दिल्ली में दिल्ली डायलॉग कमीशन सेटअप किया है और उसका मकसद ही ये है कि लोगों से डायलॉग स्थापित करेगा। अलग अलग सेक्टर में अंडरस्टैंडिंग रखने वाले लोग या पब्लिक आउटरीच रखने वाले लोगों से बात करके अलग अलग सेक्टर्स पे गवर्नमेंट को मतलब डायलॉग करेगा और डायलॉग के साथ फिर पॉलिसी बना के या पॉलिसी में गाइडेंस देगा। तो ये हमने करना शुरू किया है और उसी का नतीजा है कि गवर्नेंस में बहुत सारे सुधार देखने को मिले हैं। मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे एक और एग्जांपल जरूर मुझे ध्यान आया क्योंकि वो भी इसी तरह के एक पब्लिक फीडबैक से आया था। आमतौर पे गवर्नमेंट में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है कि भाई आपको, बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर आई एम टेलिंग यू, कि आपको हमने 100 करोड़ बजट दिया था। एट द एंड ऑफ ईयर अगर आपने 100 करोड़ में से 50 करोड़ वापस कर दिया तो आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, आप अच्छे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं है कि आपने पिछले साल हमसे 100 करोड़ रुपए मांगा था और हमने वापस कर दिया, आपने 50 करोड़ वापस कर दिया। तो एक तरह से पूछा जाता है भाई आप, इसका मतलब आपकी प्लानिंग ठीक नहीं थी या आपका एग्जीक्यूशन ठीक नहीं था। तो सारा असेसमेंट इसी बेस पे होता है किसी भी गवर्नमेंट के हेड का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, कि आपने जितना बजट मांगा था उतना खर्च कर दिया, यू आर एन एफिशिएंट डिपार्टमेंट। आपने खर्च नहीं किया, वापस किया, तो इसका मतलब यू आर नॉट एफिशिएंट प्लानर, यू आर नॉट एफिशिएंट एग्जीक्यूटर। जब फाइनेंस मिनिस्टर बनना तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि यार फिर गड़बड़ कहाँ हो जा रही है। सो हमने फिर एक आउटकम बजट लेके आए। हमने कहा कि आउटकम बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मैं बहुत आम आदमी की भाषा में बोलूं तो सामान्य तौर पे अगर मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुझसे कहा साहब 20 करोड़ में हमें एक MRI मशीन खरीदनी है और हमें अपने यहाँ हॉस्पिटल में वो एस्टेब्लिश करनी है, तो नॉर्मल बजटरी प्रैक्टिसेस में अगर हॉस्पिटल मुझे ये कह देता है साहब पिछले साल जो आपने 20 करोड़ रुपए दिए थे, हमने उससे मशीन खरीद ली है 18, 20 करोड़, 21 करोड़ की, थैंक यू वेरी मच। हम कहेंगे थैंक यू वेरी मच, यू आर ए गुड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, आपने हमसे 20 करोड़ मांगे थे, आपने खर्च कर लिए। पर आउटकम बजट में हमने ये इससे आगे बढ़ाया। हमने कहा कि ये बताओ कि MRI मशीन तो खरीद ली, अब उससे स्कैनिंग कितनी हुई? क्योंकि मशीन खरीद के ऑफिस में खड़ा कर दिया ये कोई आउटकम नहीं है। आउटकम ये था कि आप स्कैनिंग करेंगे। अगर आपने फुटओवर ब्रिज बनाया तो आपने 10 करोड़ रुपए खर्च करके फुटओवर ब्रिज बना दिया, इससे हम संतुष्ट होने वाले नहीं है एज फाइनेंस डिपार्टमेंट। हम संतुष्ट होंगे जब आप हमें बताओगे साहब हमने 10 करोड़ खर्च कर दिया, आपके दिए हुए फुटओवर ब्रिज बना दिया, बट इसको अब इतने लोग यूज करने लगे हैं, वो हमें रिपोर्ट दो। वो आउटकम ये सारे इसलिए क्योंकि ये दिल्ली डायलॉग कमीशन से ही आइडियाज आए थे और वहीं से निकल के इस तरह के आइडियाज आते भी रहे हैं गवर्नमेंट के पास में। सो वो एक फॉर्मल चैनल है हमारा आइडियाज के लिए, एनालिसिस के लिए, यंग लोगों को और फ्रेश आइडियाज को जोड़ने के लिए। Right. Thank you. The next question, sir, is from Ramya. Ramya, go ahead. Yes. Hello, sir. Thank you so much for joining us today. Sir, आपने दिल्ली में पब्लिक स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कई कदम लिए, फ्रॉम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूव टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि इस जर्नी में अपने सपने को सच करने के लिए आपने सिस्टम के अंदर से कौन से चैलेंजेस फेस किए और उनको कैसे ओवरकम किया? चैलेंज तो बहुत हैं। सबसे पहले तो एक माइंडसेट ही है, हमारे एक्सेप्टेंस में था, या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे एक्सेप्टेंस में है कि नहीं ये तो नहीं बदल सकता,
अब ऐसा करते हैं, कुछ नया शुरू कर लेते हैं, और उसकी वजह से हम हमेशा अल्टरनेट खड़े करते चले जाते हैं, वेदर प्राइवेट और इन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम तो मुश्किल है जी ठीक होना, अच्छे प्राइवेट स्कूल ही खोल देते हैं। या 2015 में मुझे बहुत लोगों ने एडवाइस किया, इंक्लूडिंग some well-wishers at central government also and people who were doing work on education at mass scale in the country. They advised me कि ऐसा करते हैं जी, हम प्रयोग करते हैं दिल्ली में, you will be the first गवर्नमेंट स्कूलों को ना आसपास के अपने अच्छे प्राइवेट स्कूल्स को दे देते हैं, जैसे डीपीएस से बात करो, 4 स्कूल वो चलाए, तो इससे मॉडल निकल के चला आएगा। तो मैंने कहा उससे पहले तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा ना कि गवर्नमेंट स्कूल नहीं चला सकती है। वो एक माइंडसेट जो है ना, खुद पे भरोसा नहीं होना सिस्टम का, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। टीचर्स का एक तरह से जो टैलेंट था, ठीक है टीचर आप बीएड पास लेके आते हैं, आप भर्ती करके लाते हैं, लेकिन 5, 7, 8 साल में उनकी कंडीशनिंग हो जाती है। देखो हम 5, 7, 10 साल से 20 साल से देख रहे हैं, ऐसी है। फिर एक बड़ा चैलेंज था हमारे सामने कि पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिक्स एज एन इंस्टीट्यूशन जो है उसकी लेगेसी, जब हम गए सरकार में, हमने कहा भाई ईमानदारी से काम करना है और काम करना है, तो लोगों को लगा हाँ अभी नए नए पॉलिटिशियन आए हो, ठीक है थोड़े दिन बाद देखते हैं, बात करेंगे। जब आपके रिश्तेदार आपके ऊपर दबाव डालेंगे, यार दोस्त दबाव डालेंगे, साहब मुझे ठेका दिलवा दो, मुझे यहाँ नौकरी दिलवा दो, मुझे इसमें कमीशन दिला दो, तो तब देखेंगे। 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने, कम से कम मैं इफ आई रिकॉल 1 से 1.5 साल तक it was hard for me to convince the people who were working with me in the government, from the government, जिन्होंने पॉलिटिकल लेगेसी को बहुत अच्छे से समझा हुआ था, देखा हुआ था कि यार ये लोग आए हैं तो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। उनको लगा पॉलिटिक्स में है तो थोड़े दिन तो होगा, फिर बाद में कहने लगेंगे भाई इस वाले में कितना कट मिलेगा। तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट में समय लगा। एंड स्केल, सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा गवर्नमेंट का स्केल होता है। आप एक रिफॉर्म करते हैं, कुछ नया आइडिया लेके, एक एनजीओ के थ्रू, एक छोटे ग्रुप के थ्रू, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के, या कोई प्राइवेट स्कूल भी चलाते हैं। इट्स वेरी इजी आपके लिए कि आप चूज ही होकर 100 बच्चे या 1000 बच्चे लेंगे और उनको अच्छी एजुकेशन दे देंगे। बट व्हेन यू आर इनटू गवर्नमेंट, आपको दिल्ली के, आई टॉक अबाउट दिल्ली, आपको दिल्ली के 44 लाख बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और उसमें वो लोग भी होंगे जो बिल्कुल नॉन एजुकेटेड फैमिली से हैं, वो लोग भी होंगे जिनके घरों में पढ़ाई का बिल्कुल वातावरण नहीं है और इच्छा नहीं है, वो लोग भी होंगे जो पढ़ाई के लिए मरे जा रहे हैं। तो आपको तो सबके लिए करना है। स्केल इज बिग। सो ये बड़े चैलेंजेस थे। आई थिंक दैट आंसर्स। थैंक यू सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऋत्विक। ऋत्विक, गो अहेड। नमस्कार सर, काफी अच्छा लगा आपकी बात सुन के। जब आप इंफॉर्मेशन वर्सेस बाइंग के बारे में बात कर रहे थे और आपने अपना एग्जांपल दिया कि आप जिस गांव में थे उधर स्वच्छता की तरफ लेके इंफॉर्मेशन थी पर बाइंग नहीं थी, तो उसमें सरपंच जो थे गांव के उनको परेशानी हुई थी, और आपने जो काम करा है उसमें भी आपने काफी ज्यादा पोटेंशियल बायर्स को बायर में कन्वर्ट किया। इवन आईएसी में बहुत ज्यादा था वो। तो आपके एक्सपीरियंस में ये जो बायर कन्वर्जन है उसमें मतलब आप अगर उसमें थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते हैं कि आप क्या अप्रोच लेंगे, और स्पेशली अगर आप ये हाईलाइट कर सकते हैं कि अर्बन ऑडियंस में बायर कन्वर्जन की तरफ आपका अप्रोच कैसा होगा वर्सेस रूरल ऑडियंस में आपका बायर कन्वर्जन की तरफ अप्रोच कैसा होगा, क्योंकि ये काफी डिफरेंट होता है जब हम दोनों ऑडियंस से बात करते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस को समझते हैं। Yeah, it's not about rural or public, I mean urban audience, it's one-to-one also. It's always different. And so there is hardly any rule that can apply. I'm saying based on my experience, I may be wrong. But buying is possible, खास तौर पर social issues पर. I mean, first of all, everybody is working on buying only. एक market में product आता है तो उसकी need पहले महसूस करा देते हैं लोग. मतलब I was interesting. It's not from social sector or political sector. I'll give you another example from my own life on buying idea. मैं एक FM चैनल में काम करता था as my career.
in the beginning of my career. So उस वक्त इस देश में, हमारे देश में, it was around 94-5, वैलेंटाइन डे बिल्कुल पॉपुलर नहीं होता था. मतलब nobody knew कि इस देश की धरती पे वैलेंटाइन डे नाम की कोई कॉन्सेप्ट है. So I was working in a news, FM channel, and I was radio jockey anchor there. So I won't name here, but one of the famous companies of that time who used to produce gift cards and gift items, they approached us. They asked us कि सब एक, अब क्योंकि FM है और एक नई यंग जनरेशन का रेडियो आ गया है, नए हिसाब से उसने बात करनी शुरू कर दी है, तो इसके जरिए हम लोग वैलेंटाइन डे की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं. आई वाज इन दैट मीटिंग, इन द फर्स्ट मीटिंग. आई आस्क्ड कि हमको क्या करना है, गिव अस सम एड्स ऑफ योर कंपनी. तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको एड देने नहीं आए, प्रोडक्ट देने नहीं आए. हम चाहते हैं कि आप अपने FM चैनल पर वैलेंटाइन डे के बारे में बात करें. दे केम उस वक्त 93-90, दिस वाज आई थिंक अराउंड 94-5. उस वक्त गूगल और ये सब भी इतना अवेलेबल, इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता था. तो दे हैड डन देयर होमवर्क. दे केम विद सम information about Saint Valentine and all this. So they gave us those copies to the anchors, to the radio jockeys. बोले आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारा प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट नहीं चलाना है. आपको रेडियो जॉकीज को राउंड द क्लॉक जब आप प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं तो आपको बस ये बात करनी है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड वैलेंटाइन, देयर इज समथिंग कॉल्ड वैलेंटाइन डे ऑन दिस अर्थ. अपने आप नीड क्रिएट हो जाएगी. एंड नाउ वी नो हाउ इट वाज क्रिएटेड. एंड उसके बाद उनको ये भी पता था कि जब इस बात को सुन के शहर में हलचल मचेगी, शहर के यूनिवर्सिटी के कॉलेज गोइंग यूथ में हलचल मचेगी, तो वो मार्केट की तरफ भागेगा और मार्केट में हमारा ही लोगो सबसे ज्यादा दिखेगा क्वालिटी में, और हमारे यहाँ आएगा वो बायर. सो दिस प्रिंसिपल इज बीइंग यूज्ड बाय मार्केटिंग कंपनीज वाइडली. सारा का सारा मैनेजमेंट, सारा का सारा MBA BBA का सारा टैलेंट आज उसी में जा रहा है. तो इसको कैसे हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में ट्रांसलेट करें, इसको हम कैसे सोशल इश्यूज और इस सब में ट्रांसलेट करें, वो चैलेंजिंग है. बट यस, समटाइम इट वर्क्स, समटाइम इट डजंट. देयर इज नो shortcut to success in this. Okay, so thank you. Priyank, do you have a question? Yes. Sir, thank you so much. It's been truly inspiring to have you with us in the class. One of the objectives that we have in teaching governance entrepreneurship to our students who are being change makers for tomorrow is to also tell them that they can be part of the government and not be fearful of the government, which has become a little bit the norm in terms of dealing with the government. So, sir, जब मैं अपने students से बात करता हूँ, they are very happy looking at getting into IAS, getting into the NGO sector, getting into the sector which is supporting the government. But politics में कोई नहीं जाना चाहता. And आपके जैसे लोग जब politics में आए, तो we've got a very different flavor of politics. So if you can share with us a little bit of your experience of this transition from, you know, corporate life or the typical job to becoming a politician, and maybe inspire us to also be less fearful of getting into politics. Thank you. If you Google about me and if you somehow find some of the videos that I used to speak on the line, I used to speak pre 2012 जब political party form की थी. So you can find there that I was one of the biggest advocates की नहीं हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए. पीपल यूज्ड टू कम टू अस कि आपने एक सक्सेसफुल मूवमेंट खड़ा किया है, आप लोग उसका एक हिस्सा रहे हो, नाउ इज द टाइम आप पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करिए और गवर्नमेंट बनाइए, ये करिए वो करिए. तो आई यूज्ड टू टेल लाउडली कि नहीं हमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी चाहिए. हमारा काम तो एडवोकेसी है, हमारा काम वी अंडरस्टैंड द इशू, वी एनालाइज दैट, वी कैन डू सम रिसर्च, वी अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन. हमारा काम ये है, हमारा काम पॉलिटिक्स में जाना नहीं है. बट एज आई शेयर्ड इन माई अर्लियर आंसर कि फिर परिस्थितियां ऐसी बनी और हम पॉलिटिक्स में आ गए तो फिर जो भी कर पा रहे हैं करने की कोशिश कर रहे हैं. बट
being here today, I would say कि politics is not easy, and it's as tough as any other thing. Cracking an IIT exam is not also easy. Cracking an IAS exam is also not easy. Anything doing, forget about cracking exams. Opening a shop in a market and getting profit every day is not also an easy thing. आप छोटी सी दुकान भी खोलेंगे और शाम को चाहें कि मुझे कुछ प्रॉफिट घर के लिए अपने खर्चे के लिए मिल जाए, वो भी इजी आसान काम नहीं है. So there is nothing easy. The only thing is कि are we ready to face the challenges? If we are ready to face the challenges, तो हम वो किसी भी चीज के हो सकते हैं. पढ़ने के समय पे IAS की तैयारी या JEE की तैयारी के भी हो सकते हैं, वो दुकान चलाने की, मार्केट में कॉम्पीट करने के भी हो सकते हैं, या पॉलिटिक्स में आके कॉम्पीट करने के भी हो सकते हैं. The only thing is कि ड्रीम्स, क्या हमारे सपने हमको बेचैन करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कलाम साहब ने जो बोला था ना कि सपने वो नहीं होते, बट इसके साथ साथ मैं उसमें एक वैल्यू ऐड करता हूँ कि सपने फिर आपको बेचैन करने चाहिए. आपको लगना चाहिए कि अगर एजुकेशन के जरिए चीजें सॉल्व होनी है तो फिर एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा. फिर शायद रास्ते भी अपने आप खुलते चले जाते हैं, लाइक माइंडेड लोग अपने आप मिलते चले जाते हैं. दैट हैपेंड विद अस आल्सो. पूरे देश भर से, दुनिया भर से लोग मिलते चले गए और कारवां बनता चला जा रहा है. ऐसे ही चल रहा है. राइट. सर, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो एक इनिशिएटिव, एक एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव जो आपने लिया है ऑफ क्रिएटिंग द स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी हियर इन दिल्ली, what is your vision for that? Because we have been creating a whole ecosystem for entrepreneurs in universities at Ashoka University. And we would love to hear your perspective on how you see skills and entrepreneurship, and how do you create a balance between what skills you will be looking at for the next generation, and also how does that tie in with the whole entrepreneurship world? इसका आंसर एक्चुअली टू पॉइंट आंसर है इसका. एक है कि इसकी निटिग्रिटीज क्या है, स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी कैसे काम करेगी, इसमें किस तरह के कोर्सेज डिजाइन होंगे, कैसे रिसर्च करेगी. दूसरा है कि इसके पीछे का पूरा सोच क्या है. सोच इसमें मतलब इफ आई गिव यू आंसर कि बड़ा इंटरेस्टिंग है. हम और CM साहब, सत्येंद्र जी और बहुत सारे जो हमारे साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है, हम सब लोग बात करते रहते थे, और ऐसे ही कभी कभी बातचीत में एक चर्चा आती थी, और आज आपके सामने शेयर करते हुए मैं मतलब अच्छा लगेगा. हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो स्कूल में पढ़ाया जाता था कि 3 तरह के देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. और हमें पढ़ाया जाता था कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री. तो एज ए क्यूरियस स्टूडेंट वी यूज्ड टू आस्क कि भाई ये तो अच्छी बात है कि अंडर डेवलप्ड नहीं है, वी आर ऑन द क्रॉस, वी आर इन द मिड. तो ये जान के अच्छा लगता है कि हम सबसे पिछड़े वालों में नहीं है. और ये क्वेश्चन स्वाभाविक आता है कि अच्छा फिर सबसे अच्छे वालों में कब होंगे, डेवलप्ड कब होंगे. तो ऑब्वियस आंसर मिलता था बस सब बहुत बढ़िया चल रहा है, 4-5 साल में इंडिया डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आ जाएगा, ऑलमोस्ट डेवलप्ड है. दिस वाज व्हेन वी यूज्ड टू बी इन schools, not college, schools. I think 7th, 8th, 9th grade. आज आप लोग बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे से काफी एज में छोटे हैं, आप लोग स्कूल में पढ़ के आए थे, तो आई एम श्योर कि वो बदला नहीं है. अभी 3 तरह के देश होते हैं, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड, और इंडिया वाज देन आल्सो अ डेवलपिंग कंट्री. यू आर इनटू कॉलेज एज नाउ, कॉलेज प्लस कॉलेज एज. आज आप स्कूल एज के बच्चों से पूछें जो 6th, 7th, 8th में हैं, आज भी हम वही पढ़ा रहे हैं. तो 30-40 साल तो हमको सुनते हुए हो गए कि साहब इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी, और आ सकता है. क्यों नहीं हुआ, गलती कहाँ हो गई? हमने IITs खोले, हमने IIMs खोले, हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी सैकड़ों अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो देश को अच्छे, दुनिया को अच्छे प्रोफेशनल्स दे रही हैं. फिर हमसे गलती कहाँ हो गई? सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि हम अपने स्किल को जॉब सीकर माइंडसेट के रूप में प्रोड्यूस कर रहे हैं. अपने पूरे स्किल और पूरे प्रोफेशन को जॉब सीकर माइंडसेट के साथ एक बच्चा स्कूल से निकलता है, यूनिवर्सिटी में आता है, यूनिवर्सिटी में जो भी उसको प्रोफेशनल नॉलेज दी जाती है, वो मैनेजमेंट की दी जाए या प्लम्बिंग की दी जाए, मेडिकल प्रोफेशन बनाया जाए या एडवोकेट बनाया जाए, वो जॉब सीकर एटमॉस्फेयर में निकल के आता है. जब तक इंडिया जॉब सीकर माइंडसेट प्रोड्यूस करता रहेगा अपने स्कूल और कॉलेज से,
जनरेशन बाय जनरेशन हमको यही पढ़ाना पड़ेगा कि 3 तरह के देश होते हैं और इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। एट सच अ लार्ज स्केल हमको इस माइंडसेट को एंटरप्रेन्योर बनाना पड़ेगा। वो काम हमने 9th, 10th, 11th and 12th में किया, and that's why in particular we are not talking about entrepreneurship, we are talking about entrepreneurship mindset। एक बच्चा अगर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ कॉलेज जाएगा तो उसको पढ़ने का एकदम तरीका बदल जाएगा। और बहुत लेमन लैंग्वेज में मैं बात करूं, लेमन एग्जांपल से बात करूं, I usually give this example in schools also. We all have seen that movie 3 Idiot. There are 2 distinct characters in that movie. One is Rancho and one is Chatur. Everybody likes to be Rancho. Nobody want to be like Chatur. Though चतुर भी उतना ही इंटेलिजेंट है और लार्जली कई जगह तो मोर मेरिटोरियस दिखता है, रटने से लेके, पढ़ने से लेके, एग्जाम पास करने से लेके, बीइंग फेवरेट टू द टीचर्स एंड डीन एंड ऑल, सबसे आगे दिखना चाहता है और दिखता है, वो टॉप पे तो है ही। बट नोबडी वांट टू बिकम रेंचो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेंचो एंड चतुर? Entrepreneurship mindset. The same knowledge from the same institution is being given by 2 sharp students, but one is becoming a good job seeker, one is becoming an entrepreneur. तो एंटरप्रेन्योर इसलिए बहुत जरूरी है देश की इकोनॉमी को आगे लाने के लिए, लाइफ को आगे चलाने के लिए। और छोटा सा देखिए ना कि मेरे दिल्ली से 2.5 लाख बच्चे पास आउट होते हैं हर साल स्कूल से। अगर 2.5 लाख बच्चे जॉब सीकर बनेंगे तो फिर जॉब प्रोवाइडर कौन बनेगा? वहां भी एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जरूरी है। तो इस सारी चीजों के साथ हमने शुरू की ये यूनिवर्सिटी की 12th के बाद बच्चे आए, स्किल सीखें, लेकिन स्किल के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप सीखें। कोई अगर 3 महीने 6 महीने का कोर्स कर रहा है से लेकर 3 महीने की 3 साल 4 साल की डिग्री कर रहा है या रिसर्च कर रहा है, सबको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं 3 महीने के प्लम्बिंग के बाद किसी कंपनी में नौकरी नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं चाहूंगा तो अपनी दुकान भी खोल के बैठ सकता हूँ, यहां से लेकर और वहां तक। और नो वंडर आज दिल्ली पुलिस में सिपाही की जगह निकलती है तो हम बार बार अखबारों में पढ़ते हैं कि साहब 400 पोस्ट थी, उसमें से 4000 लोग तो पीएचडी होल्डर हैं एप्लीकेंट्स सिपाही के लिए। तो कौन लोग हैं वो यार? पीएचडी के बाद भी अगर उनके अंदर जरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जिंदगी में कुछ, सिपाही की बात नहीं है, एक पियोन की नौकरी के लिए मैंने अखबार में पढ़ा था, तो क्लास 4 पीएचडी करने के बाद भी मैं क्लास 4 की नौकरी के लिए लाइन में लग के खड़ा हुआ हूं। तो इसका मतलब मुझे अपनी पूरी नॉलेज पर जो मैंने 20 साल में गेन की है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इस सरकारी नौकरी के अलावा भी और कुछ कर सकता हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस पूरी यूनिवर्सिटी का रिसर्च, इसका पूरा नोमेनक्लेचर इसी पे काम करने का होगा। सर एक माइंडसेट के लेके जो आपने एक पॉइंट रेज किया वो बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, वन ऑफ द थिंग्स दैट if we read also is acceptance of failure, and one of the reasons why countries like Israel and a couple of other nations which have become what is called a startup nation is because they have been able to allow failure, and the acceptance of failure socially and culturally is very high. Sir, is there something that can be done at a level where this culture of, if you fail as an entrepreneur, you are still accepted by society? Something can be done in that space? See, it's not about if you fail as an entrepreneur, what will happen? It's about if you are an entrepreneur, it doesn't matter if you fail, for you at least. You don't do suicide. Not physically, but mentally also. Physically तो फिर भी संख्या बहुत कम है, mentally तो कितने लोग सुसाइड करते हैं रोज? बस खत्म हो गया मेरी जिंदगी। और at every failure. So when I say entrepreneurship mindset, if you ask me कि आप 12th के बच्चे में after 4 years of entrepreneurship mindset curriculum क्या देखना चाहोगे, I would say कि 9th, 10th, 11th, 12th में अगर हमने इस बच्चे के अंदर यही डाल दिया कि मैं फेलियर से नहीं डरने वाला, I would use failure as an opportunity to rise one step ahead. I think that is entrepreneurship mindset. That is the success of this program of 4 years. So if you are if you are having entrepreneurship mindset, it doesn't matter if you are failing. You'll use that as a step ahead. Thank you. So we have another question from a student, Anirudh. Firstly, thank you so much, sir, for making it today. And so my question is just about engaging with power while dealing with opposing views, with specific reference to
when you first got into power and you had this vision for education, but how did you actually go ahead with increasing so much expenditure on education while at the same time dealing with so many opposing views and opposition? Actually, it's not about me. It's about a teamwork. I am fortunate enough to be part of the team where we have a chief minister like Arvind Kejriwal who understands the value of education and who understand that anything that we dream about the country and society is possible only through education. And we as a government are just there to facilitate that, to help the people who are teaching, who are doing this work in their field. As finance minister, when I was preparing my first budget, I asked the chief minister that, what is your guidance if you want to say anything specific? And very interestingly, he said that if you have to choose a school in finance. And that was the one line that gave me a way that forget it now. That's why I asked my education team that what you want, what you plan. And we started working on the budget. Eventually it came to be 25% of that time of the total budget of Delhi government. And the chief minister said, yes, we should do it. Okay. So I'm sensitive to the fact that you have to leave for another event, but it's such an honor that the Deputy Chief Minister of Delhi took out nearly an hour to spend with us, and it's an honor that we could host you. मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए तो यहाँ 55 लोग हैं इस क्लास में जो कि कोई भी प्रॉब्लम्स हो जो जिस पे अगर डिबेट करना हो या सॉल्यूशन चाहिए दिल्ली के लिए तो हमारे पास एक अच्छा ग्रुप है जो कि काम कर सकता है उस पे। बस थैंक यू सो मच पीयूष। मैं सॉरी टू इंटरप्ट बट मैं ये कहना चाहूंगा कि आप में से जो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो आ जाओ, प्रॉब्लम प्लीज डू कम। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. We were honored. Thank you. Bye.